سینٹرل جیل کراچی، اس جیل کی اپنی ایک تاریخ ہے۔ ہنر، اخلاقیات، تکنیکی مہارت، موسیقی، فن مصوری اور رہائی کے بعد باصلاحیت اور مفید شہری بننے کی جہد۔ They are adding value in the society۔ ایک قیدی جس کو 210 سال قید کی سزائے 4 دفعہ سزائے موت ہے۔ جیل کا انوائرمنٹ اتنا فرٹائل ہے کہ even though he is productive۔ کتنا پڑھنے کا موقع ملا جیل میں آ کے؟ بہت سارا ملا ہے، وہ کچھ سیکھا ہوں سر، باہر شاید میں یہ چیزیں نہیں سیکھتا، کبھی زندگی میں نہیں سیکھ پاتا سر۔ وی ٹرائی ٹو چینج بیہیویئر۔ جو بھی قیدی یہاں سے سیکھتا ہے تو اس کے اوپر یہ نہیں لکھا ہوا آئے گا تاکہ اس کو باہر جا کے یہ سرٹیفکیٹ یوزلیس نہ ہو کہ یہ جیل سے آیا۔ کچھ نہیں، اللہ خیر کرے گا، چلے جائیں گے، مردوں کے لیے بنی ہے یہ بھی جیل، مردوں کے لیے بنی ہے، چلے جائیں گے، اللہ خیر کرے۔ چلے اللہ آپ کے لیے آسانی کرے۔ اب ہم کدھر جا رہے ہیں جی؟ اب ہم جا رہے ہیں، ہم آپ کو کلاسز سکھاتے ہیں۔ ہاں، جو روٹین میں ہماری کلاسز چل رہی ہوتی ہیں۔ اچھا، کلاسز یہ تمام قیدی جو کمپیوٹر کلاس پڑھنا چاہتا ہے، اچھا، جو ایجوکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے جو پڑھنا لکھنا بیسک سیکھنا چاہتا ہے، ہمارے پاس لینگویج کلاسز بھی ہیں۔ پورے پاکستان میں کہیں پہ بھی چائنیز لینگویج نہیں سکھائی جا رہی ہے، ہمارے جیل میں سکھائی جا رہی ہے۔ سینٹرل جیل کراچی کے اندر سکھایا جا رہا ہے۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم ہماری آئی جی صاحب سے لے کے ڈی آئی جی صاحب اور ایس پی صاحب اور ہماری پوری ٹیم، سینٹرل جیل کی پوری ٹیم کی کوشش یہ ہے کہ ہم یہاں سے لوگوں کو تبدیل کر کے بھیجیں، جیسے کہتے ہیں نا کہ اصلاح گھر۔ الخدمت کمپیوٹر ٹریننگ اینڈ انگلش لینگویج سینٹر، یہ الخدمت فاؤنڈیشن کے تعاون سے چل رہا ہے سر؟ جی ہاں، یہ جو اپریشیٹڈ، الخدمت فاؤنڈیشن اپریشیٹڈ، سندھ پولیس سیم فار یو۔ اچھا سر اندر ٹیچر ہیں، وہ آپ کو تھوڑا سا تفصیلی بتائیں گے۔ السلام علیکم سر، کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ہے؟ معذرت چاہتے ہیں آپ کی کلاس کے ٹائم پر ہم نے آپ کو تنگ کر دیا۔ اس میں گرامی کیا ہے آپ کا؟ وسیم اخلاق۔ یہ بیسکلی سائیکو تھراپی کی کلاسز ہو رہی ہیں یہاں پہ۔ ہم 4 کورسز کا پورا ایک پروگرام ہے ہمارے پاس، اور اس سے جو ہے وہ کرمنل سائیکی کو چینج کرنے میں ہم کامیاب ہوئے ہیں۔ ارے ماشاءاللہ۔ صبح میں کرمنون کی کلاس چل رہی ہوتی ہے، دوپہر میں ہم لٹریسی پروگرام چلاتے ہیں کہ جو لوگ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے ان کو اردو سندھی لکھنا پڑھنا سکھایا جاتا ہے۔ بیسک رائٹنگز اور بیسک لرننگ سکلز جی دے جی دیجیے۔ تھینک یو ویری مچ جی۔ میں بات کر سکتا ہوں ذرا؟ جی بالکل۔ السلام علیکم سر۔ سر کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں؟ اس میں گرامی کیا ہے بھائی کا؟ محمد اسحاق۔ اسحاق بھائی کتنا عرصہ ہو گیا جیل میں؟ مجھے آلموسٹ تقریباً 9.5 مہینے ہو گئے۔ 9.5 مہینے؟ تو کیوں آنا پڑا جیل؟ کیا ہوا تھا ایسا؟ بس کچھ ظاہر ہے کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں انسان سے، تو یہاں پر آنا پڑا۔ تو اس کے بعد ابھی یہاں پر آپ پڑھ بھی رہے ہیں، سیکھ بھی رہے ہیں، تو کیا مصروفیات ہوتی ہیں؟ بس یہاں پہ 11 بجے ہم آ جاتے ہیں، یہاں پہ 1 بجے تک کلاس ہوتی ہے، تو بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے۔ ابھی جو کلاس ہم کر رہے ہیں یا یہ جو سبجیکٹ ہم پڑھ رہے ہیں یہ بہت یوزفل ہے۔ جرم سے ایک پاک معاشرہ آپ کو دیتا ہے یہ کورس، یعنی آپ کا رد عمل ظاہر ہوتا ہے۔ بیہیویئرل ٹریننگ، بیہیویئر ٹریننگ ہے آپ کا۔ بیسکلی آپ اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتے ہیں، مطلب آپ کو کوئی بھی اگر ایکشن ہو رہا ہے تو اس کا آپ رد عمل وہ آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں، کنٹرول رد عمل، یعنی جرم پہ آپ یعنی کنٹرول کر سکتے ہیں۔ کتنا عرصہ ہو گیا اس کلاس میں؟ مجھے ہارڈلی ہفتہ ہو گیا ہے۔ ہفتہ ہو گیا۔ اس ایک ہفتے میں کوئی ڈفرینس اپنی پرسنالٹی میں، اپنے بیہیویئر میں، اپنے ریئیکشنز پہ، لائک کسی بھی سچویشن میں آپ اگر ہائپرلی ریئیکٹ کر رہے تھے، ابھی کیا ڈفرینس ہے ایک ہفتے میں؟ کوئی نظر آ رہا ہے ابھی کہ نہیں آ رہا؟ بہت فرق ہے، میں بہت اچھا فیل کر رہا ہوں۔ مطلب بیرک میں جس طرح لوگوں کے ساتھ بیہیویئر ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آپ اگر کنٹرول کریں گے تو لڑائی جھگڑے سے آپ کنٹرول کر سکتے ہیں۔ مطلب آپ کو اس ایک اگلے شخص کو آپ پولیٹی طریقے سے اگر آپ سمجھائیں تو اگلا سمجھ بھی جاتا ہے، لیکن اگر آپ غصے کا جواب غصے سے دیں گے تو ظاہر۔ اچھا ناظرین، ایک بڑی خوبصورت بات انہوں نے مجھے یاد دلوا دی کہ یہ میٹر کم کرتا ہے کہ آپ کے ساتھ ایکٹ کیا کیا گیا تھا، میٹر یہ کرتا ہے کہ آپ نے ریئیکٹ کیسے کیا تھا۔ عمومی طور پر جرائم کی دنیا کا دروازہ کھلتا ریئیکشن کے چکر میں، کہ جب میرے ساتھ ایکٹ لیول اے تک ہوا ہے تو میں لیول سی تک جا کے ریئیکٹ کیوں نہ کروں، تو وہ ایک دلیل بن جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے آسانی کا معاملہ کرے۔ السلام علیکم سر، کیا حال ہے؟
क्या नाम है? मेरा नाम शाहिद है। शाहिद भाई कितना अरसा हो गया? तकरीबन 7 साल से जेल में। 7 साल। तो इस क्लास में कितना अरसा हो गया? यहाँ तकरीबन 2-3 साल से। 2-3 साल से इस क्लास में आ रहे हैं। क्या सीखा? आप तो पुराने स्टूडेंट हैं यहाँ के। हाँ बिल्कुल, मैंने 4 स्टेप कोर्स मुकम्मल किया है। वेरी गुड। हाँ, अभी सुपरवाइज़र कर रहा हूँ। अच्छा, सुपरविजन कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, और बहुत कुछ सीख लिया। पहले से मेरा तकरीबन मेडल तक तालीम था। अच्छा, अभी काफ़ी बेहतर हो गया है। ऐसा महसूस करता हूँ कि मैंने मेट्रिक पास किया है। वेरी गुड। जी। तो बिहेवियर में कोई तब्दीली है कि बस हमारे अंदर जो गलतियाँ थे वो इस कोर्स की वजह से अभी काफ़ी अभी आपको अल्लाह ताला कोई बाहर जाने का मौका देता है। हाँ, कोई कुदरत ऐसा मुआवजा करती है कि आपको बाहर जाना पड़ता है। हाँ, माशरे में। हाँ, तो कितना फ़र्क आप महसूस करते हैं? कितने बेहतर इंसान आप साबित होंगे? हाँ, इस कोर्स के बाद मैंने काफ़ी तब्दीली मेरे अंदर आया है और काफ़ी समझ बूझ मैंने इस कोर्स से हासिल किया है। आपके लिए आसानी। हाँ, मैं कोशिश करता हूँ कि ख़ुद भी इस पर भी अमल करता हूँ और दूसरों तक भी पहुँचा देता हूँ। मोर पावर टू यू। शुक्रिया। अल्लाह आप लोगों की इज्जत ईमान की हिफाजत करे। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है जी? ठीक है, सेहत अच्छी? कितने अरसे से हैं यहाँ पर और नाम? सर मैं 11 साल से हूँ। मेरा नाम रंजन है। मैं रंजन? अरे वाह, बड़ा प्यारा नाम है। मैं एज ए इंस्ट्रक्टर यहाँ पढ़ाता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। कैदी। सर मुझे एक चीज़, आप भी जेल में कितना अरसा पहले आए? 11 साल। 11 साल। और अब आप एज इंस्ट्रक्टर भी काम कर रहे हैं यहाँ पर। सीखा क्या जो अब आगे ऑब्वियसली सिखा रहे हैं? चलो, अब जाहिर सी बात है, सबसे पहले इंसान सीखता है कम्युनिकेशन अपनी बेहतर कैसे करनी है। जब कम्युनिकेशन बेहतर हो जाती है, जाहिर सी बात है एक रवैया है। ये हमारा कोर्स है ही इखलाकियात के मुताबिक। कितना पढ़ने का मौका मिला जेल में आके? सर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मिला है सर, शुक्र है, बहुत सारा मिला है। वो कुछ सीखा हूँ सर, बाहर शायद मैं ये चीज़ें नहीं सीखता, कभी ज़िंदगी में नहीं सीख पाता सर। मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं, मैंने अभी इनसे बात की थी कि एक राइज चीज़ है कि भाई जेल जराइम की यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, तो भाई जेल का एक रुख ये भी है कि अगर कोई, वो पंजाबी में कहते हैं कि बंदे का पुत्र है ना, तो उसके लिए इस्लाह का पहलू है, बिल्कुल है। और अगर कोई नीयत से ही खराबी में घुसा हुआ है और वो निकलना ही नहीं चाहता, तो भाई वो दूसरा दरवाज़ा भी है। तो खैर और शर दोनों साथ साथ चलते हैं। हालात कोई भी हो, सिचुएशन कोई भी हो, कोशिश करें कि शर से बचें और खैर का रास्ता पकड़े रखें। आगे मूव करें जी। सर राजन साहब, अल्लाह भाई अल्लाह सबको इज्जत दे, आपके लिए आसानी का रास्ता खोले। आए जी आए, आगे मूव करें। सर हम चल रहे हैं, आपको लैंग्वेज क्लासेस सिखाते हैं हमारी, और कंप्यूटर क्लासेस सिखाते हैं। तो अल खिदमत वालों के ताउन से हमारा ये सिलसिला जो चल रहा है, और टेक्निकल बोर्ड, सिंध टेक्निकल बोर्ड के तवस्सुस से इसकी रजिस्ट्रेशन है, बाकायदा शॉर्ट कोर्सेज हैं। अंदर चल के उसकी मज़ीद आपको तफसील। हमारे पास जेल में जो भी क्लासेस चल रही हैं उसमें आपको एज लिमिट कहीं नहीं नजर आएगी कि जैसे बाहर होता ना कि इस एज का बच्चा इस क्लास में हो, तो आप उसमें जाके ये बड़ी कीमती बात इन्होंने की है कि मुझे अभी 7 वाली क्लास में मैं गया तो वहाँ पर मुझे मुख्तलिफ बुजुर्ग भी नजर आए। तो मुझे लगता है कि बाहर जो वो झिझक रह जाती है ना कि यार मैं स्कूल जाऊंगा, अब मैं पढ़ूंगा, अब तो मेरी दाढ़ी में सफेद बाल आ रहे हैं, अब मैं बेसिक सीखूंगा, लोग क्या कहेंगे। तो भाई लोग क्या कहेंगे का डर जो है वो 4 दीवारी के बाहर है जेल से। देखिए वो अपने यहाँ वो अपने आप को अल्लाह जानता है और उनको पता है, जाने अनजाने जैसे भी वो जो भी चीज़ उनमें है। 99% अगर जराइम के अंदर इन्वॉल्व हैं तो 1% ऐसे भी हैं जो बेकसूर भी हैं। ज़ाहिर है इंसान खता का पुतला है और मालिक माफ़ फरमाने वाला है, लेकिन हमें वैल्यू ऐड करते रहना चाहिए। आई एम रियली ऑनर्ड टू ऑल ऑफ दीज पीपल। उसकी एक बेसिक वजह है कि, बल्कि मेरा तो दिल कर है कि मैं एक लम्हे के लिए क्लैपिंग करूं। उसकी वजह यह है कि दे आर एडिंग वैल्यू इन दिस सोसाइटी, और ये उस जख्म को हील करने की कोशिश कर रहे हैं जो माजी में नासूर बन जाया करता था और उसके बाद पूरे उस ऑर्गन को माइनस करना पड़ता था। आगे चल रहे हैं, देखते हैं। फाइनली जी, ये इंग्लिश, चाइनीज और अरेबिक क्लास है। टेंसेस चल रहे हैं जी? जी सर। जैसे ही हमने लगा दिया, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हमारे पास इज, एम या आर है, ठीक है। हम ही के साथ इज यूज करते हैं आम तौर पर, क्योंकि आर नहीं यूज कर रहे, जमा है। एम हम लोग यूज करते हैं आई के साथ। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। वो एक अंकल जी बैठे हुए और मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा। अस्सलाम वालेकुम अंकल, क्या हाल है? से ठीक है? शुक्र। कितना अरसा हो गया जेल में?
मैं वो तकरीबन 6 महीने हो गए। 6 महीने हो गए। कितने अरसे से इस क्लास में आ रहे हैं? तकरीबन 3 महीने से। आउटकम क्या है, डिफरेंस क्या है, कोई फर्क महसूस हो रहा है कि अंग्रेजी बोलने में, समझने में कोई फायदा बस हुआ? ये वो कुछ ना कुछ तो फायदा मिल ही रहे इससे। अगर आप बाहर होते और जेल में ना होते तो फिर कभी शायद भी आप क्लास में ना बैठते आके? बिल्कुल बिल्कुल कभी बैठते आके? मुश्किल है वहाँ है ना? बाहर बैठना। ये मुश्किल नहीं है, नामुमकिन है। नामुमकिन है, बिल्कुल। यहाँ पर आपको कोई फर्क तो महसूस नहीं होता? बिल्कुल नहीं। देखो अच्छा, ये सबसे अच्छी चीज है यार, मुझे इसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि यहाँ पर एज मैटर नहीं करती। एज बिल्कुल इसकी कोई कैद नहीं है। तो खैरियत से आना हुआ जेल? बिल्कुल, हम बस वो जाती गले में अल्लाह आपके लिए आसानी करे और आपकी बुढ़ापे को महफूज करे। आमीन। जीते रहे, तशरीफ रखें। चल रहे हैं जी आगे, और ये हमारे भाई हैं जी। जिंदगी में ये मोड़ किसी पर भी आ सकता है, और बल्कि मैं तो ऑनेस्टली ये कहता हूँ कि हमारे यहाँ तो अब एक बेंचमार्क बन गया हुआ है कि ख़ास तौर पर व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट पब्लिक, और तो आपको जेल से होके आना आपके लिए एक सर्टिफिकेट होता है, राइटली और रॉन्गली। चल रहे हैं आगे, दिखा रहे हैं। जेल इज ऑल अबाउट आपकी जो फ्रीडम है ना, उसके रिस्ट्रिक्शन पर है। तो आज़ादी की एक कीमत होती है बस। लो जी, म्यूजिक क्लास। फाइनली जी म्यूजिक क्लास में है और हमारे कैदी भाई यहाँ पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, बैठ सकता हूँ? जरूर। क्या हाल है? शुक्र है खुदा का। क्या नाम है? विल्सन। विल्सन जी। विल्सन साहब, बड़ी खूबसूरत आवाज है यार। बहुत शुक्रिया सर। पहले तो हमें कुछ गा के सुनाए ना हमारी फरमाइश पर, मानेंगे हमारी फरमाइश? जरूर जरूर। एवें ते नहीं ढोला तेरे पीछे पीछे आनिया, एवें ते नहीं ढोला तेरे पीछे पीछे आनिया, होके मजबूर तेरे तरले में पानिया, इश्क दा रोग बुरा, इश्क दा रोग बुरा तेनू समझानिया वे, सोनिया दिल दा मामला वे, हीरिया दिल दा मामला वे, सोनिया दिल दा मामला। लड़ गए ने जदों दे तेरे नाल नैन वे, उड़ गईयां नींदरां ते लुट गया चैन वे, लड़ गए ने जदों दे तेरे नाल नैन वे, उड़ गईयां नींदरां ते लुट गया चैन वे, अपना बना ले मैनू कर मेहरबानियां, अपना बना ले मैनू कर मेहरबानियां वे, सोनिया दिल दा मामला वे, हीरिया दिल दा मामला वे, सोनिया दिल दा मामला। एवें ते नहीं ढोला तेरे पीछे पीछे आनिया, होके मजबूर विल्सन, तेरे। जिस कितने अरसे से गा रहे हो? 9 साल की उम्र से गा रहा हूँ, आज मेरी 42 साल उम्र है। अरे अरे, इट्स बीन एजेस। तो यहाँ क्यों आना हुआ जी? सर बस ये दोस्तों की जो संगत है, इनकी वजह से मुझे आना पड़ गया। कितना अरसा हो गया? मुझे 6 महीने हो गए। 6 महीने जी। जब जेल में आए तो कितने अरसे में या जेल इंतजामिया को पता चला कि तुम्हें ये टैलेंट है? सर बैरिक में हमारे यहाँ पे जेल के जो इंतजामिया है, उनको बैरिक में जो मेरी आवाज़ पसंद आई, वहाँ पे गा रहे थे, बैरिक में बैठकर गा रहे थे? जी जी। तो उन्होंने मुझे ये सपोर्ट किया इस चीज़ का कि उन्होंने कहा कि अब म्यूजिक क्लास में आ गए। जी। म्यूजिक रैंडमली गाया करते थे या इस तरह कभी प्रोफेशनली भी गाया? सर प्रोफेशनली गाता था मैं। अच्छा जी। यहाँ पर आकर जेल में आपको ऐसा महसूस तो नहीं हुआ क्योंकि आप म्यूजिक क्लास में आ गए कि आपकी टैलेंट मर जाएगा? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं फर्टाइल हुआ। एनवायरनमेंट मिल गया? जी। फरहान साहब अस्सलाम वालेकुम, ये पकड़िएगा। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कितने अरसे से यहाँ पर हैं? मुझे तकरीबन 2.25 साल से ज़्यादा अरसा हो गया। क्यों आना पड़ा? फैमिली मैटर था, थोड़ा सा झगड़ा बन गया, उस सिलसिले में आना हो गया। फरहान साहब, लग नहीं रहा कि आप जेल से हैं या जेल में मुकैयद हैं, तो कोई लेकिन ऐसा ही है। ये पाबंदियां तो नहीं होती कि ये नहीं पहनना, ये नहीं करना? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जेल का इन्वायरमेंट बहुत फ्रेंडली है। जेल हकाम जितने भी हैं, जितनी भी इनकी टीम है, जो जेल के ज़िम्मेदारान हैं, बिल्कुल हमें छोटे भाइयों की तरह डील करते हैं, बिल्कुल हमारे अपनों की तरह, जस्ट लाइक अ फैमिली मेम्बर। ठीक हो। हाँ, अगर डेफिनेटली कोई कैदी कोई गलत काम करता है, कोई डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करता है, तो उसके लिए उसको सरजनिश की जाती है, लेकिन अदरवाइज़ ये हमारे फैमिली मेम्बर्स, और मैं समझता हूँ कि हमारे साथ ये भी मुकीद हैं क्योंकि ये अपने घरों से ज़्यादा टाइम हमारे साथ स्पेंड करते हैं, अपनी ईद की नमाज़ें हमारे साथ पढ़ते हैं, अपनी खुशियाँ अपने गम हमारे साथ मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। प्लस ये कि
ہماری خواہشوں کو دیکھتے ہوئے ہمارے لیے فیسلٹیز پرووائڈ کرتے ہیں، جیسے میوزک کلاس ہے، فائن آرٹ ہے اور بہت کچھ ہے. یہ سب چیزیں ہمارے لیے پرووائڈ میوزک کرتے کی ہیں. اسکل آپ کی یہاں آنے سے پہلے سے ہے کہ یہاں کے نہیں، تھوڑا باہر سے ہی ہے. پہلے سے ہی ہے؟ میرا ایک بینڈ کوئی تھا. ایسا اچھا بینڈ بھی تھا؟ جی، تو میں بینڈ میں بجاتا تھا. کوئی ایسا انڈیویجول ہے جس کو یہاں پر آ کے جس نے سیکھا ہو؟ جی بالکل ہیں، بہت سارے ہیں. وہ ذرا ملوائے نا مجھے ان صاحب. جی بالکل. تھینک یو ویری مچ جی. ویلکم. میں ادھر، آپ نے ادھر آ کے سیکھا جی؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں سنگنگ کرتا ہوں. پہلے کرتے تھے کہ آپ شروع نہیں، کیے؟ جیل میں آ کے شوق ہوا ہے. واہ، یہ صاحب میں نے پہلے دیکھے جو جیل میں آ کے سنگر بن گئے ہیں. ہاں، کیا کیا گا لیتے ہیں؟ قوالی وغیرہ. اچھا. صوفیانہ کلام، حمد وغیرہ. ویری گڈ. کتنا عرصہ لگا سیکھنے میں؟ تقریباً 4 سال. ابھی صورتحال سیدھے ہوئے ہیں کہ ابھی وقت لگے یہاں گا؟ پر پہلے میں ایک سیکھنے کی حیثیت سے، اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے آیا تھا. پھر میرے کو تھوڑا سا جب سیکھنے کا شوق دیکھا اور سب چیزیں دیکھی تو پھر جیل انتظامیہ نے پھر مانیٹر بنا دیا. اس کے بعد اب میں ٹیچر ہوں یہاں پر سنگنگ. ویری گڈ. لیول اپ ہو رہا ہے. پہلے جی بس سیکھنے آئے، پھر مانیٹر بنے، پھر اس کے بعد اب ٹیچر بھی ہیں. یہاں کا انچارج ہوں میوزک کا. آپ انچارج؟ 16 سال ہو گئے میرے کو. ویری گڈ. تو ابھی انہوں نے ایک گانا بنایا قیدیوں کے حوالے سے، دعائے کلام ہے، تو آپ کو سناتے ہیں. آصف صاحب نے جی خود پوئٹری کر کے جیل کے قیدیوں کے حوالے سے ایک دعائیہ کلام لکھا ہے جی، اور اس کے بعد اس کی کمپوزیشن بھی خود کی ہے. ان کے میوزک ٹیچر یہاں پر موجود ہیں. ہی ہیو ٹولڈ می. تو سنتے ہیں آصف صاحب کے دل کی بات کہ آصف صاحب اللہ سے کیا دعا کرتے ہیں. صدقے میں محمد کے کرم کر میرے مولا، 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 صدقے میں محمد کے کرم کر میرے مولا. گھر جانے دے، گھر جانے دے، گھر جانے دے، گھر جانے دے، رحم کر میرے مولا. گھر جانے دے، گھر جانے دے، رحم کر میرے مولا. میرے مولا، میرے مولا، میرے مولا، میرے مولا. میں اپنے گناہوں پہ پشیمان ہوں مالک، 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 میں اپنے گناہوں پہ پشیمان ہوں مالک. تو بڑا غفار ہے، تو بڑا غفار ہے، رحمان ہے مولا. تو بڑا غفار ہے، رحمان ہے مولا. گھر جانے دے، گھر جانے دے، گھر جانے دے، گھر جانے دے، رحم کر میرے مولا. اللہ تعالیٰ آپ کی نیک دعائیں قبول کرے جی. اور لٹرلی مجھے فیل آئی وہ کہ یہ دعائیہ کلام جو ہے obviously چونکہ خود لکھا ہے تو یہ دل سے ہی کہیں لکھا گیا، یہ قلم سے نہیں لکھا گیا ہوا. کس کی یاد سب سے زیادہ آتی ہے؟ سچ بتانا. ایک تو والدہ کی یاد آتی ہے. آتی ہے ملاقات کے لیے؟ والدہ بیڈ ریسٹ ہیں، وہ آتی نہیں ملاقات پہ تقریباً 8 سال سے. جی بالکل، فطری چیز ہے. تو کوئی پیغام دینا چاہیے، شاید وہ دیکھ رہی ہوں. ہاں، پیغام یہ ہے کہ نہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بھی سب کو معلوم ہے کہ میرے گھر والوں کو کہ جب یہ میرے پہ کیس ہے، اس پہ میں گھر پہ کھانا کھا رہا تھا جب یہ کیس ہوا تھا، یہ واقعہ ہوا تھا، حادثہ ہوا تھا، مگر مجھے جیل میں ڈال دیا جھوٹے کیس میں نا. تو پوری فیملی اس بات کی وٹنس ہے، کوئی وہ نہیں ہے. تو میں یعنی کہ ضروری نہیں کہ اس جرم کی سزا کاٹ رہا ہوں، ہو سکتا ہے کسی اور گناہ میں ہم لوگ آ گئے ہوں، میں آ گیا ہوں. قیدیوں کے لیے حوالے سے بھی بات کر رہا ہوں. تو اللہ رب العزت سے یہاں پر معافی مانگتے ہیں. اور جو ماضی میں گھر والوں کو
यानी कि इतना टाइम नहीं देते थे और अपने लोगों को इतना टाइम नहीं देते थे, तो वो और छोटी छोटी चीज़ों में नखरे करते थे। आज जेल ने सबसे बड़ी चीज़ सब्र सिखाया, और यहाँ की जेल जो इंतज़ामिया जेल इंतज़ामिया है, उन लोगों ने हर चीज़ में अप्रिशिएट किया। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग आज जो माजी में जो हमसे गलती कमी कोताही हुई, हो सकता है किसी का दिल दुखाया, हो सकता है घर वालों का दिल दुखाया। अम्मा के लिए मोहब्बत का कोई पैगाम दे दो जल्दी से। अम्मा के लिए एक शेर है, वो मैं सुना देता हूँ। सुनाएं। मेरी वालदा मेरी लेकर बलाए, ख्यालों में देती हैं वो ढेरों दुआएं, टले मेरे सर से ये गम की घटाएं, टले टले। जीते रहे, आबाद रहे। किसकी याद आती है सबसे ज्यादा? घर वालों की। कौन है घर में सबसे ज्यादा जिसकी याद आती है? अम्मी। अम्मी। भाईजान। जी भाई। किसकी याद सबसे ज्यादा आती है? सबसे ज्यादा अम्मी की याद आती है। आपको किसकी सबसे ज्यादा आती है? अबू अम्मी की आती है, छोटे बच्चे हैं मेरे 3। अल्लाह उनको सलामत रखे। अल्लाह उनको से। नाज़रीन, माँ और बाप ऑब्वियसली दे मैटर अ लॉट, और ऑब्वियसली मुश्किल वक्त में अल्लाह ताला ने रिश्ते ही ऐसे बनाए हैं कि उनकी याद बहुत मैटर करती है। ये ट्रक किस चीज़ का भाई? इसमें क्या म्यूजिक के आलात जाते आते हैं? मुख्तलिफ चीज़ों में मॉडल्स कैदियों ने बनाए, बल्कि अच्छा खुद बनाए कैदी? जी हाँ, कैदियों ने छोटी छोटी चीज़ों से जेल की चीज़ों को यूटिलाइज किया। आप इसको ये देख रहे हैं, आप पुलिस वैन भी कह सकते हैं कि कोर्ट जाने वाली गाड़ी बनी है। ये कैदियों ने खुद बनाए हैं? जी हाँ। पाउचेस हैं। अच्छा, इनको फिर उसके बाद मार्केट में भेजा जाएगा? नहीं, ये जो ज़्यादातर ऑर्डर्स होते हैं कैदियों के अपने ही होते हैं, जो इनमेट्स अच्छा। अंदर हैं उन्होंने ही यहाँ पे इनको ऑर्डर दिए हुए होते हैं। बाहर के लिए हम इसका सिस्टम बना रहे हैं, इंशाल्लाह ताला कि वो हो जाएगा तो हम आपको बताएंगे। सही, अभी जितना काम चल रहा है जेल के अंदर, वो कैदी ही अपनी फैमिलीज़ के लिए, या कुछ लोग यहाँ से परचेज करके बाहर भेज रहे होते हैं अपनी फैमिलियों को। एक कैदी ने तो यहाँ से चीज़ें लेके बेच के, वुमेन जेल के ऊपर भी उनकी वाइफ हैं, दोनों मियाँ बीवी बूढ़े हैं, तो उन्होंने यहाँ से वो चीज़ें बेच के अपनी 2 बेटियों की शादियाँ की। जेल में बैठ के वो सामान बेचा है, और सामान बेच के वो जो उसकी इनकम हुई वो अपने बाहर बेटी को भेजा, या जिस रिश्तेदार के घर में बच्चे वो पल रहे हैं उनके घर पे बेचा, उनकी वो शादी भी हो गई। When there is a will, there is a way. विल होनी चाहिए। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, हालात जितने भी मुश्किल हो, मखदूश हो, बिल्कुल भी साजगार ना हो, लेकिन अगर विल है तो भाई यू कैन चेंज एवरीथिंग। अच्छा, ये जगह है, वो प्रोसेस हो रहा है, जैसे आपने बाहर वो ये पर्सेस और पाउचेस बन रहे हैं। खाना बेटा जी पर्सेस और पाउचेस बन रहे हैं। एक मिनट मशीन रोकिएगा भाई, गत्ता दिखाएं। ये किस चीज पर बन रहा है? देखिए, ये दूध के खाली डब्बे हैं होते हैं, हाँ। जो आपने वहाँ देखा था ना, चाय बन रही है, ये वो खाली डब्बों को इस सिलाई मशीन से एक बॉक्स बनाया जाता है। और ये जो और ये बड़ा मजबूत सा बन गया है। पर्स बन रहे हैं ऑर्डर के ऊपर इनके। तो ये इसकी बॉडी है, इन्होंने बनाया मोतियों से। अब ये इसको कवर करके इसके ऊपर कपड़ा चढ़ा के ये इसके अंदर फिक्स करेंगे। वेरी गुड। और ये सारा हाथ से होगा और सुई से होगा। नथिंग इज वेस्ट इन जेल। कुछ भी जेल में वक्त समेत कोई भी चीज जाया करने के लिए नहीं है। बड़ी बात है जी। आए सर, आए, आगे चलते हैं। ये भी तमाम उसी तरीके से पैटर्न पर बने हुए हैं भाई। आप भी यहाँ कैदी हैं? जी सर। कितना अरसा हो गए? सर 8 साल। 8 साल हो गए। तो क्या कर रहे हैं? सर जी, मैंने यहाँ पे काम सिखाया, एजाज भाई हैं हमारे। हाँ, उन्होंने मैं यहाँ पे काम सिखाया। अच्छा, एजाज भाई आपके बड़े कारीगर हैं यार। एजाज भाई आइएगा जरा। एजाज भाई खुद भी झंडे गाड़ रहे हैं जी, और अपने साथ लोगों को भी मदद फराहम कर रहे हैं। एजाज भाई, ये भी आप लेके चल रहे हैं सारी चीजें? जी सर, ये भी। वेरी गुड। जिंदगी में मुश्किल वक्त मैटर नहीं करता। अगर आप लोगों की जिंदगियों में वैल्यू ऐड कर रहे हो ना भाई, आप जेल में कैदी हैं, बिल्कुल सर, लेकिन आप खुद भी बेहतरीन अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करें, यहाँ पर इनको इस काबिल करें कि ये भी अपनी फैमिली को सपोर्ट करें। मोर पावर टू यू।
ये बेसिक स्केचिंग और पेंटिंग है। जी हाँ, सलाम अलैकुम। स्केचिंग वगैरह सिखाते हैं जो तमाम हाँ। पेंटिंग्स होती है, वो बड़ी क्लास है हमारे पास। इधर हम जो है स्टार्ट से उनको सिखा रहे होते हैं कि पेंसिल या ब्रश किस तरह से पकड़ते हैं। पहले पेंसिल पकड़ के काम करना सिखाते हैं, फिर ब्रश पकड़ के काम करना सिखाते हैं। तो यहाँ क्योंकि अभी नमाज का ब्रेक है, लंच ब्रेक भी है, स्टूडेंट कम है। ये जी स्केचिंग हो रही है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अरे दोस्त इधर तो देखो, ठीक है? कितना अरसा हो गया क्लास में आते हैं? अभी आया हूँ मैं, 4-5 दिन हुए। 4-5 दिन। ये आपने बनाया है? जी। चलो वेरी गुड। तो क्यों आना हुआ जेल, क्या किया था? ऐसे ही उठाया था घर से। हैं? घर से उठाया था। किसने? पुलिस वालों ने। क्यों? ऐसे ही बिला भेजा। कोई पर्चा तो होगा, कोई कुछ मसला भी नहीं। होगा? नहीं, ऐसे तो जेल में नहीं बंदा आ जाता ऐसे ही उठाया था बस। नहीं, कोई मुकदमा तो होगा ना जिसमें उठाया गया। वो केस लगाए थे बस डकैती के। डकैती का। चलें, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? कितने दिन हो गए? मुझे 4 महीने हो गए। 4 महीने यहाँ पर जेल में। तो वजह क्या थी? मुझे क्या है, आए हैं जेल में, आए हैं जेल, जेल बाग तो नहीं दुश्मनी है? था उसके चक्करों में। दुश्मनी था। हाँ, बंदे ने FIR कटा दी भाई, इसने मेरे से डकैती किया, उसका पड्डा हुआ था। अस्सलाम वालेकुम। आप किस चक्कर में आए भाई? सर हमें रास्ते से उठाया गया था। क्यों? डकैती के केस में डाल दिया हमें। आप सब डकैती के केस में इकट्ठे आए हो क्या? जी नहीं, अलग अलग हर कोई अपने केसों में आया है, लेकिन ये केस हमारे ऊपर झूठे हैं। आप पर क्या केस है जी? हम दोनों को रेक ही लगाया हुआ है। केस 97 लगाया है। हाँ सर, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? मैं बैठ सकता हूँ जी? आप बड़े हैं, मुझे ज़ाहिर जो जिनको अल्लाह ताला ने बड़ा बनाया, बारिश बनाया, उनकी तो इकराम है। क्यों आना हुआ जेल? ये मनशियात केस में है। मंशियात के केस में? तो क्या बेचता था? कुछ बेचता था, लाते ले जाता था? मैं गाड़ी चलाता था, बस उसमें गाड़ी में पड़ा। कितने साल हो गया? तकरीबन 7.5 साल हो गए। 7.5 साल से यहीं पे हो। तो सजा हो गई या नहीं हुई? सजा हो गया। कितनी हुई है? 17 साल। 17 साल। तो बीवी बच्चा है पीछे? हाँ। बच्चे कितने हैं? 10। उनकी याद आती है? क्यों नहीं आता है? क्यों नहीं आता? कितना शादी बनाया था? 1। 10 बच्चा? 10 बच्चा। अरे अरे अरे, माँ बाप जिंदा है? नहीं, मर गया। अल्लाह खैर करे। तो मुलाकात आती है? नहीं, मुलाकात नहीं आती? नहीं, पेशावर है 4 सदे में। 4 सदा में। तो वहाँ से कभी कोई मुलाकात कोई भी नहीं है। कितना बेटा है? 4 बेटा है। क्या क्या उम्र है? तकरीबन 25 साल 26 साल इस तरह। तो कभी मुलाकात के लिए नहीं आया? नहीं, वो उधरी अफगानिस्तान में जाता है पेशावर से। अफगानिस्तान क्या करने जाता है? वो गाड़ी चलाता है। आपको किस चक्कर में पकड़ा था और कहाँ से पकड़ा? हम भी गाड़ी चलाता था, गाड़ी में उसी रास्ते पे? नहीं, इधर काटोर में पकड़ा था। मैंने पेशावर से गाड़ी लाया था, ड्राइवरी करता था, बस उसमें गाड़ी में मारपीट था। तो कभी कोई बेटा मिलने नहीं आया? नहीं आया था, तकरीबन 2020-2019 में आया था। 2019 के बाद नहीं आया? नहीं। उन्होंने कहा बब्बा को 17 साल का जेल हो गया, बस क्या, तब 17 साल बाद ही मिलेंगे। मजबूरी, वो अपना बच्चा संभाल करेगा, हमारा पीछे है। वो अपना बच्चे का संभाल कर रहे हैं ना। अल्लाह आपके लिए आसानी का मामला करे। जिंदा बाप है जी, और वो अपनी जिंदगी गुजार भी रहा है। मैं ऑनेस्टली रिक्वेस्ट ये करना चाहूंगा कि यार कभी कभी आके मिल गया करें, अच्छी बात होती है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? पेंटिंग करते हैं? ये किसकी तस्वीर है? ये आसमा साहबा की बनाई। आसमा शिराजी साहिबा की? तो जर्नलिस्ट हैं जी, सैयदा आसमा शिराजी। दिखाएं यार जरा, मैं उतार सकता हूँ जरा? हाँ। तो इस मोहब्बत की वजह? एक तो ये बहादुर हमारी जर्नलिस्ट हैं। हाँ। बहादुर लोगों से वैसे ही सभी मोहब्बत करते हैं। अच्छा। मुझे बहादुर लोग बहुत पसंद। सैयदा आसमा शिराजी साहिबा की तस्वीर है जी, और जेल में नाम क्या आपका? वकार हुसैन। वकार हुसैन साहब। वकार साहब कितने अरसे से जेल में हैं? ये पकड़े? 4 साल हो गए। 4-4.5 साल। किस चक्कर में आना हुआ? मैं तो मर्डर में हूँ। मर्डर में? तो किसका मर्डर कर दिया था भाई? मर्डर मैंने नहीं किया। किसने किया? किसी और ने किया, लगा मुझ पे, उसमें फंस गया मैं। अल्लाह आपके लिए आसानी करे। कितनी पेंटिंग्स बना रखी हैं यहाँ पे? यहाँ पे तकरीबन 3-4 हैं, कुछ भेज दिए हाँ। घर पे। किसी और की भी बनाई है कि सिर्फ आसमा शिराजी साहिबा की बनाई? पहले मैंने ये बनाई थी, पीर साहब बगारों की बनाई थी एक। हाँ। और महमूद मुगल की बनाई थी। हाँ। और
दूसरी अभी ये बना रहा हूँ। आसमा शिराजी साहिबा कराची सेंट्रल जेल में ये आपके फैन हैं और इन्होंने आपकी पेंटिंग पेंट की है और यहाँ पर हमें इन दीवारों पर आपकी भी एक पेंटिंग नजर आई, तो पूछने पर पता चला कि जनाब ने बनाई है। कोई पैगाम देना चाहें आसमा साहिबा के लिए? आसमा साहब का पैगाम ये है कि उन्होंने बहुत रिपोर्टिंग की है, लेकिन हम कैदियों के लिए कोई ऐसा कोई रिपोर्टिंग करें। जो ऐसे कैदी बहुत सारे बंद हैं जो बेगुनाह जेलों में पड़े हुए हैं, और ख़ास तौर पर हम तो मुझे तो सज़ा लगी हुई है, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि जो अंडर ट्रायल कैदी हैं जिन पे अभी जुर्म कोई साबित ही नहीं है, वो भी खामखा का अंदर पड़े हुए हैं, उनके लिए कोई असेंबलियों में कोई ऐसा कानून पास होना चाहिए कि वो 10 सालों के बाद उनका फैसला आता है कि ये बेगुनाह है। जिंदगी तबाह हो चुकी है, तब तक जिंदगी तबाह होती है, तब तक जिंदगी तबाह हो चुकी है, यहाँ तक कि बेटियों के रिश्ते टूट जाते हैं। भाई मैं आला ऐवानों में बैठे और बिल्कुल बिलखसूस उन लोगों के लिए जिनके हाथ में कलम अल्लाह ने दिया है इंसाफ लिखने के लिए, कि भाई लोगों की बेटियों के रिश्ते टूट जाते हैं एक दाग लगने पर, और बाद में पता चलता है कि यार वो तो बड़ा बेगुनाह आदमी था। हैं ये भी भुट्टो साहब के केस के हवाले से इतलात आई हैं जी कि उनको फेयर ट्रायल का राइट नहीं मिला था 44 साल बाद। तो मैं क्या कह सकता हूँ, तो वो नस्लें बर्बाद हो जाती हैं ये जस्टिस डिलेड के चक्कर में।